बच्चों, गुड आफ्टरनून। टुडे I shall teach English literature, and in this paper I shall teach poem entitled Character of Happy Life. This poem has been written by the poet Sir Henry Wotton. Here, character of happy life. Character means behavior or conduct. What should be the character? What should be the behavior or conduct of truly a happy man? The poet has described in this poem. Stranger first. Look at the stranger first. How happy is he born or taught? In this stanza, the poet has expressed to the quality or virtue of truly a happy man. You can see in the first stanza how happy is he born or taught. Seeing to truly a happy man, the poet surprised how this man is happy. It means this man is very happy. Perhaps he is happy since the date of birth, or after taking the birth he has been taught to be happy. जैसा कि इस कविता का शीर्षक है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, खुशहाल जीवन का चरित्र या व्यवहार। कैसा व्यवहार करेंगे तो हम खुशहाल रह सकते हैं, या जो व्यक्ति वास्तव में खुशहाल है, प्रसन्न है, वह कैसा कैरेक्टर होगा, उसका चरित्र या बिहेवियर कैसा होगा, कंडक्ट कैसा होगा, तो वह वास्तव में खुशहाल रह सकता है। सामने वही लेकर नजर है। तो हाउ हैप्पी इज ही वाज अ टॉट। एक खुशहाल व्यक्ति को देख करके कवि सर हेनरी वोटन आश्चर्यचकित होते हैं, सरप्राइज होते हैं, और कहते हैं कि यह खुशहाल व्यक्ति जन्म के दिन से ही खुशहाल है, या आफ्टर टेकिंग द बर्थ ही हैज बीन टॉट टू बी हैप्पी, या जन्म लेने के बाद उसको टाट किया गया है, पढ़ाया गया है, सिखाया गया है कि इंसान को टू बी हैप्पी, खुशहाल रहना चाहिए। That serves not another will. That here that means truly a happy man. वास्तविक रूप से यह सच्चा खुशहाल व्यक्ति सर्व मीन्स होता है सेवा करना। यहाँ पर भाव है काम करने से। सर्व मीन्स सेवा करना। सर्व से सर्वेंट बना है, काम करने वाला। तो सर्वेंट सर्व माने वह व्यक्ति वर्क करता है, कार्य करता है, नॉट अनदर विल, दूसरे व्यक्ति के इच्छा या आदेश पर नहीं। इट मीन्स ट्रूली ए हैप्पी माइंड इज सेल्फ, या ट्रूली ए हैप्पी माइंड इज इंडिपेंडेंट, ट्रूली ए हैप्पी माइंड इज फ्री, ही डज नॉट वेट टू गेट द ऑर्डर ऑफ एनी पर्सन टू डू द वर्क। It means truly a happy man always does the work according to his own desire. That's not another way. वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की will means desire या आज्ञा, वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के will यानी ऑर्डर पर, आदेश देने पर काम नहीं करता है, बल्कि वह व्यक्ति अपनी
इच्छा के मुताबिक कार्य करता है। Such type of person is known as independent. That person is accepted or thought as a good person who does the work according to his own desire. वह व्यक्ति अच्छा माना जाता है जो अपनी निजी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, और जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा या आदेश के अनुसार कार्य करता है वह स्वतंत्र नहीं कहा जाता है। Whose armor is his honest thought, जिसका कवच, आर्मर मीन्स कवच, रक्षक यंत्र, आर्मर मीन्स रक्षक यंत्र, जिसके रक्षक यंत्र होते हैं, क्या होते हैं? हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके ईमानदारी से भरे हुए विचार। इट मीन्स ट्रूली हैप्पी मैन is always seen to be happy because he is an honest person. Honesty is very necessary to be happy. Honesty is very necessary to be happy. So truly a happy man always try to have a thought of honesty. Thought of honesty does the work of armor. Thought of honesty does the work of armor. ईमानदारी से भरे हुए विचार ही किसी इंसान के आर्मर होते हैं, कवच होते हैं। And in the fourth line, the poet says, and simple truth is utmost skill. सत्यता ही उसकी सर्वाधिक स्किल मीन्स विजडम, विवेक माना जाता है। वह सत्यवादी, इट मीन्स ट्रूली ए हैप्पी मैन इज ऑलवेज ए ट्रूथफुल पर्सन, ही नेवर टेल्स ए लाई, he becomes habitual to speak truth. Truth is very necessary. That person cannot be happy who always tells a lie. But on this place, that man can be truly a happy man who always speaks the truth. To speak truth is very necessary to be happy. And in the second stanza, whose passions not his master are. In the second stanza, the poet Sir Henry Wotton has expressed other qualities of a truly happy man. Whose passion, here passions means uncontrolled desire. So one look at it like passions means uncontrolled desire, very fast desire, बहुत तीव्र इच्छा। Passions means संवेग. What is passion? Fast desire या fast wishes या uncontrolled desire cannot be controlled. अनियंत्रित इच्छा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। So that wishes or desire which cannot be controlled is known passion. ऐसी इच्छाएं या ऐसी इच्छा जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है उसको हम पैशन कहते हैं। ऐसी तीव्र इच्छा जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसको हम पैशन कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग ऐसा होता है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो कहता है which passions not his masters are. In this line, the poet Sir Henry Wotton is telling us that passions are uncontrolled desire can never be his master, but also truly a happy man always become the master of his passions or master of his uncontrolled desire. This is the quality of a mind, that he should
he should never give the chance to his person to be his master, but also a man should try to be the masters of his own desire. यानी whose person not his master, खुशहाल व्यक्ति की तीव्र इच्छाएं या अनियंत्रित इच्छाएं उसका मास्टर नहीं हो सकती हैं। यानी खुशहाल व्यक्ति कभी भी अपने संवेग या अनियंत्रित इच्छाओं के वश में नहीं होता है, बल्कि वह स्वयं अपनी तीव्र अनियंत्रित इच्छाओं का मालिक बन जाता है। It is good habit for a man that he should try to be the master of his own desire, his own fast desire. यह एक अच्छे व्यक्ति की अच्छी विशेषता मानी जाती है। उसे हमेशा अपने अनियंत्रित इच्छाओं का मालिक बन जाना चाहिए, अर्थात अनियंत्रित इच्छाओं को वश में कर लेना चाहिए, बुरी इच्छाओं को वश में कर लेना चाहिए। If man is capable, if man is able to control his bad desire, bad wishes, it means that man is good. And it is seen in the society that generally a good man lives his life happily. Whose soul is still prepared for death. जिसकी का मतलब truly happy mind, सच्चा खुशहाल व्यक्ति की soul means आत्मा, सच्चे खुशहाल व्यक्ति की आत्मा still prepared सदैव तैयार रहती है। खुशहाल व्यक्ति की आत्मा सदैव तैयार रहती है for death, मृत्यु के लिए। So this is a question that if any person is always prepared to die, it is good habit of that person or bad. अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहता है तो उस व्यक्ति को अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं। If man is prepared to die for good work, for moral work, he is ready to die for good work or moral work, it means that person is very good person. अगर कोई व्यक्ति अच्छे काम को, नैतिक कार्य को करने के लिए तैयार रहता है तो इसका मतलब वह अच्छा व्यक्ति है। बिना काम का मरता है तो उसको अच्छा नहीं कहते हैं। तो वो सोच प्रिपेयर करते, जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है, ये तो अर्थ हुआ, लेकिन अपने तरफ से जोड़ दीजिए फॉर गुड वर्क, फॉर मोरल वर्क। अगर हाँ तो खुशहाल व्यक्ति सदैव हमेशा गुड वर्क के लिए, मोरल वर्क के लिए, गुड वर्क अच्छा कार्य, मोरल वर्क नैतिक कार्य के लिए, कार्य को करने के लिए अगर मृत्यु का भी खतरा हो तो मृत्यु से न डरे तो वह अच्छा व्यक्ति माना जाता है। और खुशहाल व्यक्ति यही विशेषता है कि अच्छे या नैतिक कार्य को करने के लिए सदैव मरने के लिए तैयार रहता है, मृत्यु से डरता नहीं है। Undo word with care. शादी कर देखिए, टाइट वाले बंधा हुआ, बंधन में पड़ा हुआ, अनटाइट बंधन से खुला हुआ, टाइट बंधा हुआ, बंधन में जकड़ा हुआ, और अनटाइट फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज, बंधन से स्वतंत्र। तो अनटाइट का मतलब हियर अनटाइट मीन्स फ्री, हियर अनटाइट मीन्स फ्री। खुशहाल व्यक्ति फ्री होता है। Unto the world with care. World with care means worldly anxieties or worries. World with care means worldly anxieties or worries. Worldly anxieties संसारिक चिंताओं से। तो खुशहाल व्यक्ति की विशेषता क्या है? वह स्वतंत्र रहता है, वह स्वतंत्र रहता है। किससे स्वतंत्र रहता है? वर्ल्ड विथ केयर, माने वर्ल्डली एंजाइटी से,
सांसारिक चिंताओं से, सांसारिक बंधनों से फ्री रहता है, मुक्त रहता है। सांसारिक बाधाएं उसको सताती नहीं है। तो सांसारिक व्हाट आर द वर्ल्डली एंजाइटी, व्हाट आर द वर्ल्डली एंजाइटी? एज आंसर, the feeling of rivalry and criticism is worldly anxiety. मैंने प्रश्न किया कि what are worldly anxiety, सांसारिक बंधन या चिंताएं क्या? तो उत्तर के रूप में दिया गया the feeling of rivalry and vulgar breach means criticism, टीका टिप्पणी आलोचना। vulgar breach means टीका टिप्पणी या आलोचना, क्रिटिसिज्म आलोचना। तो प्रिंसली रॉयल्टी, राजसी ठाट-बाट, प्रिंसली प्रिंस राजकुमार होता है, प्रिंसली का मतलब रॉयल्टी, राजसी ठाट-बाट से लगाव और सामाजिक या पब्लिक की आलोचना, ये चीज जो है सांसारिक चिंताओं में माना जाता है। आदमी हमेशा कल्पना करता है कि मैं राजकुमार की तरह, राजा की तरह जीवन व्यतीत करूं, यह कामना करता है, और वह डरता भी रहता है कि कहीं पब्लिक मेरे ऊपर टीका टिप्पणी न कर दे, कोई कलंक न लगाए। तो समाज द्वारा, पब्लिक द्वारा लगाया गया क्रिटिसिज्म, आलोचना और रॉयल्टी मीन्स राशि ठाट बाट प्राप्त करने की चेष्टा करना, ये सभी वर्ल्डली एंजाइटी या वर्ल्डली वरीज मानी जाती है, मानी सांसारिक बंधन या सांसारिक चिंताएं मानी जाती हैं। सो इन द थर्ड लाइन द पोएट इज टेलिंग अस ट्रूली ए हैप्पी मैन इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम द वर्ल्डली वरीज, वर्ल्डली एंजाइटी, बट वी शुड नो व्हाट आर द worldly anxiety. So feeling of rivalry and public criticism is known as worldly anxiety. So he never thought in worldly anxiety. He is free. He never cares to get rivalry, and he never fear from the criticism given by the public.